Good morning, students. I am Dr. Neera Singh from Meerut College. Today we are going to discuss organization of chromosomes with a special reference to nucleosome folding. On the last turn, we discussed molecular organization of chromosomes. So now we will continue our discussion and we will see how a long molecule of DNA is folded in the small chromosome that is found in the nucleus of the cell. As you already know, chromosomes are complexes of DNA and proteins which are present in the form of darkly stained bodies in the nucleus of the cell, and these structures are known as chromosomes. In eukaryotes, a varied number of chromosomes is present. These chromosomes are linear and found in paired condition. In prokaryote, that is bacteria, chromosome is single and that is circular. Viral genome is very diverse. In viruses, chromosome can be in the form of DNA or RNA. This DNA can be linear or circular. It can be single-stranded or double-stranded. Similarly, RNA can also be genetic material. So this RNA molecule can be linear or circular, and it can be single-stranded or double-stranded. In the living world, only in viruses, RNA is the genetic material. In some viruses, not in all viruses, but in some viruses. And this RNA molecule is sometimes double-stranded. Usually in prokaryotes and eukaryotes, RNA molecule is single-stranded and DNA is double-stranded. But in some viruses, DNA is also single-stranded. Now eukaryotic chromosomes are present in pairs, which are known as homologous pairs. और हर एक यूकैरियोटिक स्पीसीज का अपना एक सर्टेन नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, एक कंप्लीट सेट होता है. यानी कि फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 46 क्रोमोसोम, दैट इज 23 पेयर्स. इन 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स में से, यानी कि हर एक होमोलोगस पेयर में से one chromosome is inherited from mother and other chromosome is inherited from the father. और हर एक सेट में जो है डिफरेंट नंबर होता है क्रोमोसोम्स का. हर एक क्रोमोसोम के अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं. So in eukaryotic chromosomes are organized in, एक्चुअल में जो क्रोमोसोम होता है क्या है? It is a long linear DNA molecule. And for a DNA molecule to exist in the form of chromosome, there are 3 requirements. These 3 basic requirements are origin of replication, centromere and telomere. कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल क्रोमोसोम की तरह से जब फंक्शन कर सकता है अगर उसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जिससे कि वो डीएनए का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट कर सके. उसका अपना सेंट्रोमियर होगा which will help at the time of cell division. और हर डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों एंड पे टीलोमियर होने जरूरी है बिकॉज दे प्रोटेक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम. आपको बताया सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, इस एक दोनों साइड डीएनए होता है. जो एक आर्म कंपैरेटिवली छोटी होती है दैट इज नोन एज शॉर्ट आर्म और पी आर्म, और एक आर्म लॉन्ग होती है जिसको कहते हैं क्यू आर्म. बीच बीच में जो लाइट कलर के बैंड दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ये एंड पे एक साइड पे टीलोमियर है, दूसरी साइड पे टीलोमियर प्रेजेंट. और बीच बीच में ये आपको ग्रे कलर का जो जिगजैग दिखाई दे रहा है, जहां जिगजैग मोर कंसंट्रेटेड है वहां पे डीएनए हाईली कंसंट्रेटेड होता है. जो लाइट कलर के पोर्शन दिख रहे हैं वो लेस कंसंट्रेटेड डीएनए होता है. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी आप आगे चल के इट विल बी मेड क्लियर टू यू. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? बेयरर्स ऑफ जीन. और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके ऊपर जीन्स लोकेटेड होती हैं सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच में.
hundreds to thousand जीन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जीन्स का नंबर कम होता है एंड वेरी फ्यू इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हायर यूकैरियोट्स होते हैं फॉर एग्जांपल मैमल्स, इनमें जीन्स आर वेरी लॉन्ग एंड these genes are usually interrupted. These have introns and exons. What are introns and exons? These will be discussing in our next lecture. And there are non-genic sequences. These non-genic sequences यानी कि एक तो एक्टिव जीन्स होती हैं और दूसरी होती हैं नॉन-जीनिक सीक्वेंसेस। जो एक्टिव जीन्स नहीं होती हैं दे कंटेन रिपीटेटिव डीएनए। वहां पे जो है वो डीएनए के सीक्वेंसेस बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इट इज प्रेजेंट इन द टीलोमियर्स, इन द सेंट्रोमियर एंड इन द सैटेलाइट ऑफ क्रोमोसोम। some chromosomes satellite body is also present. जो यूनिक या नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वो तो होती हैं एक्टिव जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स। ये जो डीएनए है यूनिक डीएनए या नॉन रिपीटेटिव डीएनए, इट इज फाउंड वंस और अ फ्यू टाइम्स इन द जीनोम। यानी कि पूरे जीनोम में वो या तो केवल एक बार प्रेजेंट होगा या 3 या 4 बार प्रेजेंट होगा, बहुत ज्यादा बार ये प्रेजेंट नहीं होती। इसमें जो आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो होती हैं। फिर आते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। उसमें एक तो होते हैं मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस वो होते हैं जो एक बेसिक सीक्वेंस फ्यू 100 to 1000 टाइम्स रिपीट होता है। ये कौन से होते हैं? ये वो जीन्स होती हैं जिनके प्रोडक्ट की हमको ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि जीन्स फॉर राइबोसोमल आरएनए एंड हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम्स। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएट होकर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाती है। और जो राइबोसोमल आरएनए है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि सेल में कंटिन्यूअसली प्रोटीन सिंथेसिस चलती रहती है। तो इन जीन्स के प्रोडक्ट की सेल को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज व्हाई दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन मेनी नंबर्स, 1000 नंबर्स। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक क्रोमोसोम में देयर आर मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो हर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में सेम सीक्वेंस होता है। एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स वो जीन जो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है क्रोमोसोम में भी जीनोम में भी। और दूसरे होते हैं हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। ये जो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ये 10 of thousands लेके मिलियन ऑफ टाइम तक रिपीट होते हैं। ये सेंट्रोमियर का डीएनए, सैटेलाइट का डीएनए, टीलोमियर रीजन का डीएनए, ये सारे होते हैं हाईली रिपीटेटिव डीएनए। अब हम, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियोसोम फोल्डिंग ऑफ द क्रोमोसोम, तो न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में डीएनए क्यों फोल्ड होता है, उसकी क्या जरूरत है? इसका रीजन ये है, in every human cell about 6.4 billion base pairs are present. 6.4 बिलियन बेस पेयर हैं हर सेल में। और इसको अगर हम एक एंड से दूसरे एंड तक सीधा रखते हैं तो अ सिंगल सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स विल बी ओवर 1 मीटर लॉन्ग। ये जो एक सिंगल सेट है ह्यूमन क्रोमोसोम्स का, ये 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा होगा। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है वो होता है ओनली 2 to 4 μm इन डायमीटर। अब इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2 to 4 μm के न्यूक्लियस के अंदर 1 मीटर लंबा डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे समा है? इसके लिए दिस डीएनए मॉलिक्यूल हैज टू बी फोल्डेड, और ये फोल्डिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होनी चाहिए। अब ये जो डीएनए लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है ये यूकैरियोट्स में एसोसिएटेड होता है विद द प्रोटीन्स, जिनको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है और इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, इनके साथ डीएनए एसोसिएट होकर अपना कंपैक्शन करता है, अपने आप को शॉर्ट बनाता है, कॉम्पैक्ट बनाता है। Initially it was thought that DNA associated with proteins is in the form of beads on a string. एक string पे bead के फॉर्म में ये होता है, यानी कि जैसे कि आप माला देखती हैं धागे के ऊपर,
मोती पिरे रहते हैं। ये आप देख रही हैं यहाँ इसमें डायग्राम में। ये जो इनिशियली फोटोग्राफ्स खींचे गए थे, ये डीएनए को सॉल्ट सॉल्यूशन में के साथ ट्रीट करा गया था, तो ये जो इसकी फोल्डिंग्स थी खुल गई और ये इस तरह के फोटोग्राफ्स नजर आए। तो ये फोटोग्राफ देख के ये आइडिया लगा, ये वाला फोटोग्राफ तो है एट मॉडरेट सॉल्ट कंसंट्रेशन, और ये जो इधर वाला फोटोग्राफ है ये है आपका हाई सॉल्ट लो सॉल्ट कंसंट्रेशन। इन फोटोग्राफ्स को देख के अंदाजा लग रहा है कि ये जो आपका डायग्राम है, ये डायग्राम आपका ऐसा लग रहा है जैसे कि माला होती है, माला में एक स्ट्रिंग होती है, धागा होता है, उसके ऊपर मोती पिरे रहते हैं, बिल्कुल ये ऐसी स्ट्रक्चर लग रही है। तो शुरू में ये माना जाता था कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड, ये है इन द फॉर्म ऑफ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, और बीड्स स्ट्रिंग के साथ जो डीएनए की लेंथ है वो 7 टाइम्स छोटी हो जाती है। लेकिन बाद की रिसर्च से क्या पता चला, बाद में जब रिसर्च करी तो पता लगा कि जो हमारा बीड ऑन स्ट्रिंग कंसेप्ट था वो उल्टा था। एक्चुअल में स्ट्रिंग इज ऑन बीड्स, बीड है ये मोती है, इसके चारों तरफ स्ट्रिंग लिपटी हुई है। ये स्ट्रिंग लिपटी हुई किस तरह से है, ये एक ऑर्डरली ऑर्डर में फोल्ड हो रही है इसके चारों तरफ। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये डीएनए ब्लू कलर से जो दिखा रखा है, दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल, और बीच में जो ये ब्राउन येलो ब्राउन कलर से दिखा रखी है, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। ये एक स्ट्रक्चर कहलाती है न्यूक्लियोसोम, और ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर सबसे पहले वर्कआउट करी थी रोजर कॉरनबर्ग ने इन 1974। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, देयर आर 4 कोर हिस्टोन्स इन द न्यूक्लियोसोम। ये जो कोर हिस्टोन्स हैं ये हैं H2A, H2B, H3, H4। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक प्रोटीन्स, और इन पे प्लस चार्ज होता है। इनमें बेसिकली सब बहुत ज्यादा अमाउंट लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स का होता है, और ये जो डीएनए है उसकी बैकबोन बनाते हैं। और ये जो 4 हिस्टोन कोर प्रोटीन्स हैं, इनके हर एक के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज अ ऑक्टोमर। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये एक ऑक्टोमर है, इसमें प्रोटीन की 8 यूनिट हैं। 2 यूनिट H2A की हैं, 2 यूनिट H2B की हैं, 2 यूनिट H3 की हैं, 2 यूनिट H4 की हैं। इन्होंने मिलके एक ऑक्टोमर बनाया, हर एक हिस्टोन प्रोटीन की 2-2 यूनिट के साथ। और ये जो ऑक्टोमर है इसके ऊपर डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, इट टेक्स 1 3/4 फोल्ड, एक सही 3/4 फोल्ड, पूरे 2 फोल्ड नहीं, एक पूरा फोल्ड और दूसरा 3/4 फोल्ड। तो 1 3/4 फोल्ड लेता है मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ऑन दिस ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन्स। ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल की लेंथ है, इसमें होते हैं 146 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में 146 बेस पेयर होते हैं। अगर इसका बहुत ज्यादा हाइड्राइजेशन कर दिया जाए तब ये आपको मिलते हैं इसमें 200 बेस पेयर्स। 200 बेस पेयर क्यों मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं कि उस टाइम ये जो 2 न्यूक्लियोसोम है इनको जोड़ने वाले डीएनए को कहते हैं लिंकर प्रोटीन, लिंकर डीएनए, सॉरी प्रोटीन नहीं डीएनए, लिंकर डीएनए। तो ये जो लिंकर डीएनए है इसके नाइट्रोजिनस बेसिस भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो तब आपको 200 के करीब मिलते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक न्यूक्लियोसोम का डाइजेशन करें तो यू विल फाइंड 146 बेस पेयर। और ये हर एनिमल के न्यूक्लियोसोम में 146, एनिमल, प्लांट, इन ऑल यूकैरियोट्स, एक जो न्यूक्लियोसोम है उसमें 146 बेस पेयर्स होते हैं। और ये जहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग बंद हुई, इनको सील करने का काम करता है H1 हिस्टोन। इट इज नोन एज लिंकर प्रोटीन और लिंकर हिस्टोन। एक जो न्यूक्लियोसोम है उसकी वेट है 11 नैनोमीटर। तो एक न्यूक्लियोसोम क्या हुआ,
the nucleosome is octamer of 4 histone proteins having 2 molecules of each protein and a molecule of DNA folded over this octamer. ये है आपका न्यूक्लियोसोम. 2 न्यूक्लियोसोम जुड़े रहते हैं बाय लिंकर डीएनए और लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन. न्यूक्लियोसोम में मैंने बताया कि नंबर ऑफ बेसिस इज फिक्स्ड. इसमें बेसिस का नंबर 146 जो बेस पेयर है वो फिक्स रहता है, लेकिन जो लिंकर डीएनए है इसमें बेसिस का नंबर वेरी करता है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज एज वेल एज इन डिफरेंट टिश्यू. सेम एनिमल सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टिश्यू में भी लिंकर रीजन के जो डीएनए में बेसिस का नंबर है वो वेरी कर सकता है. ये आपका डिटेल डायग्राम है न्यूक्लियोसोम का. ये बीच में इसमें स्टोन ऑक्टोमर दिखाया है. ये आपका मैंने आपको बताया था कि जहां से डीएनए का फोल्ड शुरू करता है और एंड करता है उनके बीच में प्रेजेंट होती है H1 हिस्टोन लिंकर हिस्टोन, और इसके साथ जो बीच वाला लिंकर डीएनए का रीजन है उसके साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड रहते हैं. ये हो गया आपका एक न्यूक्लियोसोम. इसमें आपको दिख रहे हैं 1 2 3 न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहे हैं. और आपका न्यूक्लियोसोम क्या हुआ? न्यूक्लियोसोम हो गया जो आपने स्ट्रक्चर देखी थी इनिशियली, स्ट्रिंग ऑन बीड्स. बीड्स के ऊपर स्ट्रिंग लिपटी हुई है. जो हिस्टोन प्रोटीन है दीज आर हाईली कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के कोर्स में हिस्टोन प्रोटीन का कंजर्वेशन हुआ है बिकॉज दीज आर बेसिक और दीज आर नेसेसरी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम फोल्डिंग. डीएनए तो कंजर्व हुआ, ये सारी स्पीसीज में डीएनए की स्ट्रक्चर सेम है. इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा सिमिलर है इन डिफरेंट स्पीसीज. जो काओ का और पी का H4 हिस्टोन को कंपेयर करा तो दोनों में टोटल नंबर अमीनो एसिड्स का 102 है और केवल 2 अमीनो एसिड डिफरेंट हैं, बाकी सारे 100 अमीनो एसिड सिमिलर है. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा कंजर्व हुई हैं हिस्टोन प्रोटीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. अभी आपने देखा कि आपका फर्स्ट लेवल ऑफ फोल्डिंग था एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम लेवल पे पहली बार डीएनए का मॉलिक्यूल फोल्ड हुआ. इसके बाद न्यूक्लियोसोम होने के बाद न्यूक्लियोसोम दोबारा फोल्ड होते हैं और ये फोल्ड होकर बनाते हैं एक सोलेनॉइड. सोलेनॉइड की स्ट्रक्चर वर्कआउट करी थी आउडेट ने, और ये सोलेनॉइड मिलके बनाते हैं 30 nm का फाइबर. सोलेनॉइड क्या होता है? जस्ट इमेजिन लाइक अ रिबन. एक रिबन इमेजिन करिए आप. तो ये रिबन तो आपका हो गया न्यूक्लियोसोम. जब न्यूक्लियोसोम फोल्डिंग हो गई डीएनए मॉलिक्यूल की, वो आपका बन गया रिबन. उस रिबन से आप जैसे बर्थडे का गिफ्ट देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं और उसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं. तो वो जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, इस तरह से ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपका एक सोलेनॉइड. ये हर एक जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है ये आपके इसमें कई न्यूक्लियोसोम है. ये न्यूक्लियोसोम फोल्ड होके इन्होंने फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाई जो सोलेनॉइड है, और ये फ्लावर एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं. जैसे कि दूसरा आप इसका इमेजिनेशन कर सकती हो इन द फॉर्म ऑफ कॉइन. जैसे कि एक ये सोलेनॉइड आपका ऐसे कॉइन जैसी स्ट्रक्चर बन गया. इस कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन पाइल अप हो गया, इसके ऊपर तीसरा कॉइन पाइल अप हो गया. तो इस तरह से पाइल अप होके ये आपका एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी थिकनेस है आपकी 30 नैनोमीटर.
जो न्यूक्लियोसोम फोल्डिंग थी उसमें थिकनेस थी 11 नैनोमीटर, यहाँ पे आपकी हो गई 30 नैनोमीटर की थिकनेस। अब आप यहाँ देखिए लेवल्स ऑफ फोल्डिंग। ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है सादा, एक सीधा डबल हेलिक्स जिसकी थिकनेस है 2 नैनोमीटर। के बाद ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसकी फोल्डिंग हुई इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम फोल्डिंग होने के बाद इसकी थिकनेस हो गई 11 नैनोमीटर। इसके बाद इसकी थर्ड लेवल की फोल्डिंग हुई एट द लेवल ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड फोल्डिंग में ये हो गई इसकी थिकनेस 30 नैनोमीटर। ये 30 नैनोमीटर का फाइबर है जिसकी फर्दर फोल्डिंग होती है। ये आपका क्रोमेटिन फाइबर भी कहा जाता है, जो आप क्रोमेटिन फाइबर जिसको कहते हैं, इट इज द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर विच इज 30 nm इन थिकनेस। अब ये जो आपका एक 30 nm का फाइबर हो गया, यहाँ आने तक आपका डीएनए 50 फोल्ड्स 50 गुना डीएनए मॉलिक्यूल की फोल्डिंग हो गई। जितनी इसकी इनिशियल लेंथ थी उससे ये 50 टाइम्स छोटा हो गया, 50 टाइम्स इसकी फोल्डिंग हो गई। अब इसके बाद जो थर्ड लेवल है कॉम्पैक्शन का, इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन 30 nm फाइबर एंड द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर जो आपका ये फाइबर है 30 nm का फाइबर है और न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, इसके बीच में इंटरैक्शन होकर फर्दर फोल्डिंग होती है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। न्यूक्लियर लेमिना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर न्यूक्लियर लेमिना होती है और उसके अंदर इंटरनल मैट्रिक्स होती है जिसमें मैट्रिक्स के प्रोटीन्स होते हैं। These internal matrix proteins are associated with the fiber or solenoid fiber or fiber of DNA. जो एसोसिएटेड होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं मेनली न्यूक्लियर लेमिना के साथ। और ये जो एसोसिएटेड होता है फाइबर, ये इस तरह से एसोसिएटेड होता है कि जीन्स विच आर एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड दे फॉर्म रेडियल लूप्स, और जो जीन्स एक्टिवली ट्रांसक्राइब नहीं हो रही होती वो लेमिना से अटैच रहती है, उनका ट्रांसक्रिप्शन रेडिली जल्दी से नहीं होता। और हर एक न्यूक्लियस की, हर एक क्रोमोसोम की न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट स्पेसिफिक पोजीशन होती है। ऐसे नहीं है फिजिकली कहीं भी पड़ जाएंगे, उनकी ऑलमोस्ट फिक्स पोजीशन होती है और वहां पे ये जो न्यूक्लियर लेमिना है उसके साथ ये फाइबर आपका अटैच रहता है। इसके आपके मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन्स होते हैं, MAR, मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन। ये जो मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन है और ये आपकी इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं न्यूक्लियर लेमिना की मैट्रिक्स की प्रोटीन्स। इनको मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन और स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन SAR बोलते हैं। यहाँ पे अटैच्ड है, ये आपकी एक्टिवली ट्रांसक्राइब जीन्स है जो एक्टिवली ट्रांसक्राइब होंगी और ये ट्रांसक्राइब नहीं होने वाली जीन्स इस पोजीशन में यहाँ पे प्रेजेंट है। This attachment of radial loops to the nuclear matrix is important in 2 ways. There are 2 important features, or there are 2 importance of this arrangement. First, this attachment and arrangement, it plays a role in gene regulation. जीन रेगुलेशन, सेल के अंदर सारी जीन्स एक साथ एक्टिवेट नहीं होती, सीरियली एक्टिवेट होती हैं। जिस जीन के प्रोडक्ट की जरूरत होती है ओनली दोज जीन्स आर एक्टिवेटेड। अगर ये एक ऑर्डरली सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगी, इट विल हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी। एंड सेकेंडली, इट सर्व्स टू ऑर्गेनाइज द क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस। ये मैंने आपको भी बताया था कि क्रोमोसोम की जो पोजीशन होती है न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट फिक्स होती है। अगर ये क्रोमोसोम अटैच नहीं होंगे न्यूक्लियर लेमिना के साथ तो ये हैफेजर्डली कहीं भी पड़े हुए हो सकते हैं।
But if these chromosomes are attached and always attached at a fixed position, then their position will be almost fixed within the nucleus. Each chromosome in the nucleus is located in a discrete and non-overlapping chromosome territory. हर क्रोमोसोम की न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है. उस टेरिटरी के अंदर क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, उनसे बचते हुए एक दूसरे को ओवरलैप ना करते हुए अपनी उस फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम. और उनकी वो जो पोजीशन होती है दैट इज नोन एज क्रोमोसोम टेरिटरी. हर क्रोमोसोम की अपनी एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है. क्या आपने देखा था कि डार्कली स्टेन न्यूक्लियर डीएनए था और लाइटली स्टेन डीएनए प्रेजेंट था. तो ये जो कंपैक्शन लेवल होता है इसमें आपको क्रोमोसोम में दो तरह के रीजन्स दिखाई देते हैं. लाइटली स्टेन्ड रीजन विच इज नोन एज यूक्रोमेटिन एंड डार्कली स्टेन्ड रीजन विच इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन. जो यूक्रोमेटिन रीजन है इसमें देयर इज लेस कंडेंसेशन ऑफ, वहां पे डीएनए का कम कंडेंसेशन होता है. एंड दीज रीजन्स आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. इन रीजन्स में देयर इज एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन. द जीन्स विच आर एक्टिव एंड जीन्स which are being continuously transcripted, ये जीन सिचुएटेड होती हैं. ये बहुत कम इनका कंपैक्शन होता है क्योंकि इनका प्रोडक्ट की जरूरत होती है, तो इनका एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन. और यहाँ पर ये वो वाले रीजन होते हैं जहाँ पे 30 nm फाइबर जो है वो रेडियल लूप बना. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर लेमिना से अटैच थे अपनी क्रोमोसोम टेरिटरी में. कुछ पोर्शन न्यूक्लियर लेमिना से अटैच था. सम पोर्शन वाज फॉर्मिंग ए लूप लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रखी थी. तो ये वाली जो जीन्स होती है यूक्रोमेटिन वाली, ये लूप रीजन में प्रेजेंट होती हैं एंड दीज आर बीइंग एक्टिवली ट्रांसफर्ड. जो क्रोमोसोम का जो डीएनए का पोर्शन लेमिना से अटैच रहता है वो एक्टिवली ट्रांसक्राइब नहीं होता. दिस रीजन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. और यहाँ पे जो पोर्शन है ये टाइटली कॉम्पैक्टेड रीजन ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो डार्कली स्टेन्ड होते हैं. जब स्टेन करते हैं किसी स्पेसिफिक स्टेन से तो वो पोर्शन डार्क स्टेन लेता है जिसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन रीजन. हेट्रोक्रोमेटिन रीजन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. यूक्रोमेटिन एक तरह का है जो एक्टिवली ट्रांसक्राइब हो रही है, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है these are of two types. One is constitutive heterochromatin and other is facultative heterochromatin. Constitutive heterochromatin is that heterochromatin which always remains heterochromatin. उसकी जीन कभी भी एक्टिवली ट्रांसक्राइब नहीं होती, वो हमेशा इनएक्टिव ही रहती है. तो ये वाला होता है, ये वाला रीजन कहलाता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन. और जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है वो सेल साइकिल के हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस रीजन की जीन्स कैन बिकम एक्टिव और इनएक्टिव. So this region keep on converting between euchromatin and heterochromatin. Example, bar bodies. Bar body mammals में present होती हैं. Mammals में females have 2x chromosomes and males have 1x chromosome. So for doses compensation in females, 1x chromosome is inactivated and is present in the form of bar body. Mammals में females में 2x chromosome होते हैं, males में 1x chromosome होता है. क्योंकि फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम की जीन्स की डबल डोज होती है, तो डोजेस कंपेंसेशन के लिए दो में से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है. और ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम रहता है इन द फॉर्म ऑफ बार बॉडी. डार्कली स्टेन्ड बॉडी दिखाई देती है जिसको बार बॉडी कहते हैं. तो कौन सा एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा, कौन सा इनएक्टिव होगा, इट इज रैंडम. फिक्स नहीं है कि दो में से कौन सा मैटरनल ओरिजिन का या पैटर्नल ओरिजिन का एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, ऐसा नहीं है. दोनों में से अलग अलग सेल में अलग अलग एक्स क्रोमोसोम रैंडमली इनएक्टिव हो जाते हैं. तो ये वाला पोर्शन है आपका फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो एक्टिव भी हो जाता है और नॉन एक्टिव भी रहता है. ये आपकी लूप डोमेन्स है. पिछले डायग्राम में आपने देखा था सोलेनॉइड फाइबर तक,
सोलेनॉइड फाइबर न्यूक्लियस के अंदर जाके न्यूक्लियर लेमिना से अटैच्ड होके ये लूप डोमेन्स बनाता है, जगह जगह डोमेन्स। तो ये आपका इसकी थिकनेस हो जाती है 300 नैनोमीटर। और जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है उसमें ये जो लूप डोमेन की जीन्स है, दीज आर फर्दर, ये यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर फर्दर फोल्डेड, और ये फोल्ड होकर बना देती हैं 700 नैनोमीटर तक की थिकनेस का कॉम्पैक्ट रीजन। तो ये वाला पोर्शन जिसमें सादी रेडियल लूप्स दिखाई दे रही हैं, ये आपका यूक्रोमेटिन रीजन है, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल की या क्रोमेटिन फाइबर की थिकनेस 300 नैनोमीटर है। और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में इनकी फर्दर फोल्डिंग हो गई और इसकी थिकनेस हो गई 700 नैनोमीटर। और ये आपके मिलके बनाते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम। ये आपको दिखाई दे रहा है मेटाफेज क्रोमोसोम। शुरू में जो आपने क्रोमोसोम का डायग्राम देखा था उसमें आपने केवल एक ही स्ट्रक्चर देखी थी, ये सिंगल। उसके बाद सेल डिवीजन जब शुरू होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, एंड इन वन क्रोमोसोम डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। और जो मेटाफेज स्टेज तक तो एक साथ अटैच रहते हैं, बाद में यहाँ से सेंट्रोमियर डिवाइड होकर एनाफेज में ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम बनाएंगे। तो क्रोमोसोम की सबसे ज्यादा कंडेंस्ड स्टेट है, इट इज फाउंड ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, एंड क्रोमोसोम्स आर यूजुअली स्टडीड ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जो आप लोग क्लास में भी स्लाइड बनाते हैं अनियन रूट टिप की, वो मेटाफेज क्रोमोसोम्स आपको सबसे क्लियरली दिखाई देते हैं, और स्टेजेस भी दिखाई देती हैं, पर मोस्ट कॉमन स्टेज इज मेटाफेज, तो आपको सबसे आराम से दिखाई देते हैं। प्रोफेज के एंड में सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, उसके बाद फिर ये जो हाईली कंडेंस्ड मेटाफेज क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और एनाफेज में वो दोनों के क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। मेटाफेज स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स में जो रेडियल लूप्स हैं, these are compacted and anchored to the nuclear matrix scaffold. ये आपके मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ऐसे क्रोमोसोम आपको दिखाई देते हैं। दो क्रोमोसोम दिखा रखे हैं। ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर joins two sister chromatids, and it is essential for chromosome segregation at the time of cell division. This is short arm of chromosome, P petite arm. This is long arm, that is tube arm. This is telomere, ये टीलोमियर, ये टीलोमियर। यहाँ पे डीएनए आपका हेट्रोक्रोमेटिन पोजीशन में रहता है, हाईली रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये क्रोमोसोम के एंड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। In the chromosome there are light bands and dark bands. Light bands are of less condensed chromatin material where transcription is very active. और यहाँ पे जो जीन्स होती हैं, these are rich in GC, that is guanosine and cytosine bases इस रीजन में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। These are dark bands, ये जो डार्क कलर के दिखाई दे रहे हैं, they replicate late during cell division, and these regions are rich in AT, that is adenosine and thymine region में rich होते हैं ये वाले पोर्शन, और ये डार्क बैंड बनाते हैं, डार्क स्टेन लेते हैं। This is a homologous pair of chromosomes. मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि chromosomes in eukaryotes, chromosomes are present in pairs. तो जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं इनको कहते हैं homologous chromosomes. क्रोमोसोम के ऊपर जीन सिचुएटेड होती हैं लीनियर ऑर्डर में। एक पर्टिकुलर जीन की पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। ये वन लोकस, लोकस पे दोनों साइड एक एलील प्रेजेंट होगा तो होमोजाइगस कंडीशन होगी। अगर दोनों लोकस पे इधर डिफरेंट एलील होगा, इधर डिफरेंट एलील होगा, देन दिस कंडीशन विल बी नोन एज हेट्रोजाइगस।
These are total 23 pairs of human chromosomes which are arranged in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 groups. 7 ग्रुप्स में अरेंज रहते हैं, ए से लेके जी तक ग्रुप्स होते हैं और इनको नंबर दिया जाता है 1. तो आगे जितने भी क्रोमोसोम है, जो सबसे बड़े नंबर का साइज का क्रोमोसोम होता है दैट इज गिवन नंबर 1, और जो सबसे छोटे साइज का होता है दैट इज गिवन नंबर 22, लास्ट नंबर. और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. If it is a female, there will be 2 X chromosomes. If it is a male, then 1 X chromosome and 1 Y chromosome will be present in the karyotype. ये और एडवांस टेक्निक से क्रोमोसोम 1 की एनालिसिस करी गई है. Different bending resolutions are shown. So that is all for today. Thank you.